are Hello, live. hello, Assalamualaikum. and hello, and welcome to Raheen's page. This is me, Raheen, और आज है हमारे साथ Safa entrepreneur slash Safa Ishtiyaq, and she's an entrepreneur, and she's a very good lady. We were talking before this, so I really want to talk to her more. So I think without further ado, let's get to Safa. So hello, Safa, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसी हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तो प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगी हमारी ऑडियंस के लिए. Okay, so my name is Safa Ishtiaq. I'm an entrepreneur, an influencer, a business developer, and a graphic designer by profession. And I have been into this industry from like 3 years and more. And on being an entrepreneur and you choosing this topic, I was really excited about, because this is some kind of I'm passionate about. And people do confuse about being passionate and being an entrepreneur. They don't know the major reason behind entrepreneurship, right? So I was really excited to have this session with you. Plus, I'm still a student, 8th semester, bachelor's in computer science, and yeah, in spite of study, I do like to work more. Yeah, so uh, totally agreed. बिल्कुल, like हमारे यहाँ people Hmm. mostly don't even know what entrepreneurship is. Yeah. So I would really love if you could tell us some of your childhood stories, as in how was your childhood, because I think it really has an impact on who you grow up to be. Yeah, But sometimes it exactly. even comes into your entrepreneurial ideas or ventures. कभी Hmm. कभार वो जो Hmm. छोटी छोटी चीजें आपको याद रहती है from your childhood really just Hmm. pops up in some of your work. Yeah. अच्छा खैर, when I was small, I used to like to be a teacher. फिर एक स्टेज आया, I became a teacher. I had 11 students at my home जिनको मैं home tuitions देती थी और American Life stuff में as a class teacher मैं पढ़ा चुकी हूँ. But after that journey, right, I realized that this is not whom I wanted to be. This is not my, on taking career. This is don't I simply don't I want to pursue, right, as a career. So entrepreneurship मुझे by choosing नहीं मिला, by chance मिला. I was trained as an entrepreneurship. I fall into it, and now I am a truly, इस पे इतना मुझे वो है कि अब मैं हर एक आने वाली यूथ को, हर बच्चे को, हर एक को इसके बारे में अवेयरनेस भी देती हूँ, गाइड भी करती हूँ, ट्रेन भी करती हूँ. तो in childhood we have been, because I'm a Gemini, I love to talk. I am a person of a communication. So Ah, ये एक मेरा और entrepreneurs का काम ही यही होता है. They talk a lot. They have to talk about their business. They have to talk about marketing. They have to talk to their team. And being the eldest bacha of my family, I'm always having the hold on my siblings, right? Even it's in my house or even it's in my nanny's house. So yeah, उसमें भी मुझे फिर बड़ा हुआ कि यार having a team, जिनको आपको ऐसे टीम नहीं लेकर चलना, एज अ लीडर आपको उनको गाइड लेकर करना है और चलना है. So that's how I fall into entrepreneurship. और basically जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी वो हुई नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फ्रॉम लम से. आई वाज इन बैच 1. वहां से मुझे पता चला अच्छा दिस इज स्टार्टअप कल्चर, दिस इज एन एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर स्किल्स होते हैं, ये उनका माइंडसेट होता है. सो या. yes, and because सॉरी. मजे की बात बताऊं, I would be the first 12-year-old. Actually, I was या 11 at the यंग time, and I got एंटरप्रेन्योर. incubated in the National माशाल्लाह. Incubation Center. So it all sounds so bizarre. और ऊपर से जो हम बड़े बच्चे होते हैं, अब मैं दादा के घर में सबसे बड़ी हूँ और साथ में लाइक अपने बहन भाई में भी खैर मेरा एक ही भाई है, तो हम सही मैं सही है. सबसे बड़ी हूँ. तो मैं जो हूँ बेबी सेट करना, ये सारे काम जो है कर करके लीडरशिप स्किल्स बंदे में वैसे डेवलप हो आ ही जाते हैं. जाती हैं. हाँ. और ये जो लोग बात करते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट पे, वुमेन डोंट नीड्स टू बी एम्पावर्ड. वी आर बीइंग एन वुमेन, वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड. हमें किसी और की जरूरत नहीं है कि हमें आके एम्पावर करे, क्योंकि वी बीइंग एट हाउस आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ एंड वी आर ट्रेन्ड टू डू दैट. हमें कोई पहले से नहीं सिखाया जाता. या. बिल्कुल. और व्हाट आई रियली रियली थिंक इज, क्योंकि अब जिस तरह आपने बात की कि बचपन में जो लीडरशिप स्किल्स या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं, बड़े होके उनको एनहांस कर सकते हैं, पर उसमें जो है आई थिंक बिल्कुल वो बिल्ड अप नहीं हो सकते. तो वो बचपन का आई एग्जैक्टली. गेस इसीलिए बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि या. मैं भी इनका आई एम जेमिनी तो नहीं, आई एम अ विगो, बट आई ओके. टॉक अ लॉट.
और It does लीडरशिप affect. स्किल्स अभी आई थिंक ये जो बेबी सिटिंग कजन बेबी सिटिंग जो होती है ना उससे बहुत ज्यादा आ गया. Sweet. But it's So good, we you have know, this some of it's comment good. and I really want to mention this one. Okay, And please. please define an enterprise. Okay, so enterprises like small medium enterprises भी होते हैं और small medium enterprises के अलावा there are corporates, right? अच्छा, क्योंकि SMEs पे बहुत ज़्यादा बातें आजकल इसलिए हो रही हैं क्योंकि अभी लोगों ने उन SMEs को जानना शुरू किया था, उन पर आना शुरू किया था और suddenly this lockdown happened, right? अब लोगों को आना अब पता ही नहीं चल रहा that what management tools they should be using, what tools they should be having to manage their team, even for their own selves. उनको ये पता ही नहीं कि किस तरह करें, you know, so that's why people are having more hype about it कि यार अब हम क्या करेंगे after lockdown, क्या करेंगे. काफी लोगों को after lockdown situation ही नहीं पता. काफी businesses ऐसे हैं जो कि already they are finished right due to this lockdown. But on the other hand, अगर हम इसको positive देखें तो many people have started their own businesses too. If you talk about my own business, I have, you know, take it to the next level. तो ये आप किसी भी स्टार्टअप में या किसी भी बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. इट्स द वन हु यू हैव टू चूज व्हाट आपने क्या करना है. either you have to take it in a positive way or either you have to take it in a negative way. ये आप पे टोटली डिपेंड करता है. Yes, I totally agree because अभी बहुत सारे I know I have some insight कि बहुत सारी जो बड़ी companies that we see now, they are working in what they are planning in this time, even staying at home मतलब Zoom जिंदाबाद. So like staying at home, what they're doing is that they're planning post corona मतलब कोरोना के बाद क्या करना है because I think कि अभी जो डिजिटल स्किल्स सीख रहा है आगे जाके उनकी बहुत जरूरत पड़ेगी. क्योंकि कहते हैं ना हर चीज का जरा एक थोड़ा सा जब एक मजे की चीज का चस्का पड़ जाए तो वो फिर चस्का हो जाता है. Exactly. बिकॉज जब बंदा आराम से बेड पे लेके क्लासेस ले रहा हो तो बंदे का तो वो फिर हो जाता है ना मजा आता है. तो एवरीबडी वांट्स कि भाई नहीं ऑनलाइन स्कूल ही कर दे. ऑनलाइन सो मुझे ये बताएं कि आपका कभी जब बिफोर बीइंग इंट्रोड्यूस टू एंटरप्रेन्योरशिप कभी ये हुआ कि आपने कभी कोई इनफॉर्मल वेंचर किया? इनफॉर्मल वेंचर्स किस तरह के? ओके, इनफॉर्मल वेंचर आप जिस तरह मजे की स्टोरी करती हूँ यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर दैट. So मजे की बात ये कि in the 5th grade I almost got expelled because of my entrepreneurial spirit. You know that? Oh God. और शुक्र है मैं एक्सपेल नहीं हुई बिकॉज मुझे था कि यार एक्सपेल तो मैं हो जाऊंगी पर ये जरा थोड़ी बात अजीब सी है कि मतलब फिर उसके बाद मैं कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं करूंगी. अच्छा, for that reason, for that reason I told you this funny story that we could relate. हुआ ये कि जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया लम से शॉर्ट कोर्सेज राइट, उससे पहले मैं आल्फा सॉफ्टवेयर टावर में इंटर्नशिप कर रही थी और अभी मैं यूनिवर्सिटी में थी और थर्ड सेमेस्टर में थी. अब थर्ड सेमेस्टर के बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, कोई दूसरा स्किल समर वेकेशन में कर लेते हैं या वो क्या करते हैं कि अपनी जिंदगी बस यू नो फन फ्रेंड्स के साथ और इस तरह कर लेते हैं. So what I did, I wanted to highlight my own skills in graphic designing. I fall into graphic designing. अब among 150 teams में जब हम top 30 teams में आए ना into National Incubation Center में, I wasn't enrolled as a graphic designer, but later on I teamed up, so I became a co-founder of that startup. मैंने अपना semester freeze करवा दिया. I was like, go and do study. I was like, नहीं मुझे नहीं पढ़ना. मैंने कहा मामा, this is the route. This is the career I wanted to choose. I have been teaching. I have been graphic designing. मैं इतना कुछ कर रही हूँ, but अब मुझे जाके पता चला है मैं business की बंदी. CS मुझसे नहीं होता. Please don't ask me to study anymore. मैं next semester freeze करवाया. Summer vacations आ गए. फिर मामा ने कहा कि नहीं बेटा अब तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. You have to complete your degree. I need your degree. मैंने कहा मामा, I'm a graphic designer. I can design you my degree. You can frame it onto the wall. So she was like, no, go and study. And I was like, okay. So then I continued my study. But being a university student, आपको edge ये है कि आपने अपने courses खुद ही select करनी होती है.
तो आई चोज मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और जो बाकी 2 ट्यूसडे और थर्सडे थे ना, मैं आल्फा सॉफ्टवेयर टावर में जाकर बैठती थी, प्लान 9 बैठती थी, मेरे अंडर टीम थी, उनको मैं गाइड करती थी, 9 to 5 उनको टाइम देती थी, 5 to ऑनवर्ड्स अपना काम करती थी. So that's how I have been balancing my study and entrepreneurship, because आपकी वाली बात चस्का लग जाए ना तो फिर वो चस्का लग जाता है, फिर नहीं जाता. बिल्कुल, बिकॉज एंटरप्रेन्योर, मजे की बात, अब मुझे जब एंटरप्रेन्योरियल चस्का आपको बताऊं कब पड़ता है, व्हाट आई रियली थिंक, इसके एंटरप्रेन्योरियल हमारा भी इकोसिस्टम देखें, अब हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. और बिल्कुल यही है कि एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम की बात ये कि पाकिस्तानी जैसे भी हों, लेकिन पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स होंगे एट द एंड ऑफ द डे सेम. Because you know, entrepreneurs have that one thing in common. Yeah, और exactly. बस like वो entrepreneurial, क्योंकि एक entrepreneur ही दूसरा, हालांकि वो उनका अपना ही कंपटीशन क्यों ना हो, लेकिन वो दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, they give opportunities. ठीक है यार, तुम अभी थोड़े स्मॉल स्केल में हो, तो you just take things from our side, even though you are competition. हाँ, लोग कंपटीशन को हेल्दी कंपटीशन ही समझते. वो कहते हैं कि यार वो आगे है, वो चला गया, उससे कर लिया है, मैं छोड़ देता हूँ, या उसको हेल्दी कंपटीशन नहीं लेते. वो कहते हैं कि यार अगर उसने किया है, मैं इससे बेहतर क्या कर सकता हूँ, कम अप विद अ गुड सॉल्यूशन, कम अप विद अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. ये लोगों की मेंटालिटी यहाँ पे नहीं है. बट या एट द एंड आपकी बात बिल्कुल ठीक है. वन, यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम टुवर्ड्स एनी पीपल यू लुक फॉर, एंड द सेकंड थिंग इज दैट आपको बहुत ज्यादा परसिस्टेंट होना पड़ता है, सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है. आपको कोई आके नहीं कहेगा कि सफा यू हैव टू बी मोटिवेट, बिकॉज यू हैव टू मेक योर टीम मोटिवेट. आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है. There will be thousands of people who will be giving you negative comments, who will be criticizing you, who will be throwing stones on you. But on 10% people who makes you positive and who keep you going on, right? Those 10% people are the reason you should live, and is the reason that you should be persistent and determined and confident for your own business. क्योंकि जो आपका बिजनेस है वो कोई और नहीं जान सकता. बिल्कुल, and I truly agree. लेकिन अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका स्टार्टअप है क्या? What was that thing जिसने असल चस्का जो है आपको इसका किया था? Okay, so there's a funny story behind it too. What happened was back in 2016, online shopping पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा trendy होना शुरू हो गया था. So I ordered this one ring from, I don't know, it was an online store. I have no idea the name अब तो. But that ring was really beautiful. It cost me 600 rupees at that time with delivery charges, right? अच्छा, मजे की बात, next day it came, I had it, I loved it. Next day there was another page with the same ring, but 400 rupees. I was like, why? Why is that reason? Now with delivery charges वगैरह. अच्छा, अब फिर मुझे पता चला कि लोग एक ही सप्लायर, फॉर इंस्टेंस एक ही सप्लायर है, लोगों ने उनको डिफरेंट प्राइसेस पे अपने प्लेटफॉर्म में रखा है, दे आर सेलिंग इट ऑनलाइन. तो वहां से मुझे आइडिया हुआ कि यार, फिर मैंने उसका कीड़ा निकाला कि कहाँ से शुरू हो रहा है काम, कैसे कर रहे हैं लोग. somehow मुझे कुछ लोग लोकल मार्केट से उठा के कर रहे थे. अब लोकल मार्केट की ऑलरेडी लाहौर में इतनी डिमांड है, एवरीवन could just go out and take, so what's the benefit of having it online ना. then फिर मैंने क्या किया, मैंने ना, I got to know about this platform, not platform, this application AliExpress. अब वहाँ पे 50 रुपीज, पाकिस्तानी 50 रुपीज होना, वो घर पे मुझे मेरी चीज मिलती है विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी शिपिंग, विदाउट एनीथिंग. ठीक है, फिर मैंने वहां से चीजें मंगवाना शुरू की. फर्स्ट आई स्टार्टेड दिस पेज व्हिच वाज नेम्ड एज HSK, हुमा सफा कोमल. इट वाज पहले ये ई-दर्जी हम लोगों ने बनाने की इसको कोशिश की थी, बट somehow they both left. They both were my colleagues from American Lifestyle School, but somehow they left. So I wanted to carry on because already मैं उसकी फॉलोइंग लेकर आ चुकी हुई थी. फिर मैंने AliExpress से चीजें मंगवानी शुरू की बाहर से, क्योंकि वेस्टर्न थी, यहाँ पे लोगों के पास ऑलरेडी ईस्टर्न चीजें होती हैं. वहां से मंगवा के पेज पे रखना शुरू की, एंड आई स्टार्टेड टू सेल. सबसे ज्यादा मेरे कपड़े बिके. अब कपड़ों में इशू क्या आना शुरू हुआ, मेजरमेंट्स का. मैंने कहा यार, ये मेजरमेंट्स का एक ऐसा गैप है हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि इफ आई टॉक टू, इवन if I would say मैं सफायर पे जाऊँ मुझे स्मॉल आता हो, मैं लाइमलाइट पे जाऊँ मुझे मीडियम आता हो, तो there are no standard sizes. So there I got with an idea of virtual dressing room. एक स्टैचू होगा, एक एवतार होगा जिसके आपकी बॉडी मेजरमेंट्स होंगे, और जितने भी हमारे पास डिजाइनर्स और कपड़े हैं वो उसमें आपको फिट होके आपको खुद आप देख सकते हो, वर्चुअली उसको देख सकते हो,
और उसके बाद you could buy online. And if you have to give your own custom measurements, so you can also give those custom measurements. So that's why how I fall into this entrepreneurship. फिर क्योंकि मेरी ट्रेनिंग वहाँ लम्स की हुई थी and I wanted to take it to the next level, so finally I applied for my own startup in NetSoul. So recently I was incubated in Inspire NetSoul का incubation center, and it was an amazing journey, I must say. Yes, because जब आप when you're incubated उस पे like when you feel like कि भाई इतनी ज़्यादा applications थी, and when I'm chosen from there, you ultimately you feel more I would say you feel more special. You Yeah. feel like अच्छा यार 200 applications थी और उसमें से भाई मैं I'm one of them. Yeah. Yeah. That I got selected, और बंदे को like you know ultimately just feel like special. You feel like you're something new in the market. And because e-commerce का देखें तो अब e-commerce is really flourishing. Exactly, yeah. और हर एक ने शुरू कर दिया है. Everyone thinks that e-commerce is a very simple business, but it's not actually. लेकिन हर एक ने शुरू कर दिया है. Okay, Habib was commenting on our live session. Thank you so much, Habib. He's the kind of a person who motivates every single time. So thank you, He does. He does. I also had a session with him, and he's so motivating. Yeah. He's very motivating. And तो because आपको like कपड़ों का तो ये हमारे यहाँ वाकई में बहुत ब्रांड है. लाइमलाइट पे में कुछ और आता है, खाड़ी पे कुछ और भी आ जाता है. बहुत ज्यादा मसला होता है. अच्छा, पे कंपैरिजन. अब आपको पता है कि आपके पास 3000 बजट है एंड यू हैव 20 शॉप्स टू लुक फॉर. अब आप क्या करोगी? यू विल सम ऑफ द वुमेन, उनको थोड़ी सी हैबिट होती है हर एक शॉप पे जाकर एंड दे कम बैक टू द फर्स्ट शॉप एंड बाय दैट. मेरे में ये हैबिट नहीं है. मुझे फर्स्ट शॉप पे कुछ पसंद आ गया, आई बाय इट, आई टेक इट, क्योंकि बजट का पता होता है, आपको पता होता है आपने क्या लेने जाना है. ठीक है. अब कंपैरिजन किस तरह हम लोग हमारी वेबसाइट पे करते हैं कि देयर आर टू थिंग्स. यू हैव अ बजट, यू हैव सेड कि आपको 2000 और 3000 के अंदर में कुछ लेना है. तो हमारे आई हैव गॉट ऑलरेडी 15 प्लस डिजाइनर्स, फैशन डिजाइनर्स हैं और स्टूडेंट्स ही हैं, इमर्जिंग वो डिजाइनर्स हैं जिनको अपना खुद सेल्फ एक ब्रांड नहीं बनाना आता था. मी बीइंग यू नो अ लीडर फॉर देम और एन प्लेटफॉर्म फॉर देम टू गाइड देम, मैं उनको फिर इस तरफ परस्यू करके लेकर आई हूँ. नहीं, यू शुड सेल दिस ऑनलाइन. तो उनके लिए हम फोटोग्राफी करते हैं, उनके लिए मॉडल फोटोग्राफी करते हैं, उनके लिए हम डिलीवरीज उनकी संभालते हैं, उनके लिए मार्केटिंग संभालते हैं. वी डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर देम. तो उस केस में फिर वो कंपैरिजन होता है आपस में उन दो प्रोडक्ट्स का, कस्टमर को नजर आता है तो फिर वो बेस्ट सेलेक्ट भी कर सकता है उसको कौन सा पसंद है. बिल्कुल. तो उसमें जो है व्हाट आर द सम challenges that you face being, because you are something new in the market, being you're also giving chance, you're also having like new people coming in and also old people designing, so it's like a lot going on. So what are some of the challenges that you face during this लोगों को कन्विंस करना, क्योंकि लोगों को ना अभी इस बात पे यकीन नहीं आता that I am charging a minimum percentage in spite of such services, because एक बहुत ज्यादा हाइप है कि यहाँ पे ऑनलाइन काम तो वैसे ही फ्रॉड है. लोगों को ये बड़ा पहले मुझे बताना पड़ता है, नहीं मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, आई हैव अ लॉयर, आई हैव अ टीम रनिंग इन. तो एक लोगों को ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं, बट यू नो when you're good to go and you have a good social presence, because I have a really good social presence on my own Instagram and as well as on Caspadian. Caspadian is basically my business name, right? तो फिर लोग उस authenticity से उससे they keep up the following up, then they do ask me. तो चैलेंज मेरे लिए नए लोगों को और पुराने लोगों को एक ही पेस पर रखना ना, that's some you know kind of challenge for me, but चलता है, बिजनेस है, सब कुछ चलता है. Yes, असल में मेरा जो है मुझे ऑनलाइन शॉपिंग रियली सेव्स, बिकॉज मेरा मसला ये आई हेट गोइंग टू मार्केट्स. I really hate कि भाई जाएगा and then I'll stand in the shop and then I'll try the जोड़ा out and whatever. But I would suggest कि मामा आप घर पे बैठ के मंगवा ले. It's better. Yeah. अच्छा, after that my mother got such a you know attraction of this online shopping. उनको कोई भी छोटी चीज भी चाहिए ना, she was like सफा ऑनलाइन ढूंढो ना, come on, go out and take it out from store. नहीं, सफा ऑनलाइन कर दो. लाहौर में तो आपको like उसका when you talk about shopping and if somebody is shopaholic, then Lahore is like the best place.
I mean, Exactly. you Yeah. have Liberty, you have a lot of places. I've been to Yeah. Lahore lot of times. मतलब बहुत Mm-hmm. बचपन में, the most interesting part of the year would be going to Lahore, when, Oh. twice actually a year. So Okay. every once in 6 months I would go there. But shopping पे दोबारा मुझे होता था कि मुझे एक जगह बिठा दे, फिर उसके बाद जो मर्जी आपने करना है करें, मुझे बस True. बिठा दें एक जगह पे. So मुझे आई Nice. थिंक ऑनलाइन शॉपिंग हैज रियली सेव. लेकिन जितने मेरे एपिक फेज हो चुके हैं ऑनलाइन शॉपिंग के, होता है. like super चलो. epic fails, but some जो Hmm. होते हैं, they don't take responsibility. Some Hmm. brands, they don't take responsibility. I mean, I didn't ask you to Hmm. order it or something. Yeah. So अच्छा, बाहर के मुल्क में ये बड़ा आपको एज है कि ना उनकी रिटर्न पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं. पाकिस्तान में hmm, रिटर्न पॉलिसीज इतनी नहीं इंट्रोड्यूस करवाई गई, मतलब इतने अच्छे तरीके से नहीं इंट्रोड्यूस करवाई गई, या करवाई भी गई है तो बहुत कम लोग इस पॉलिसी पे चल रहे हैं. उनसे और इवन देयर उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में बोल्ड करके लिखा होता है नो रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी, जबकि बिल्कुल. कस्टमर को पहले रखना चाहिए एंड कस्टमर की सेटिस्फैक्शन शुड बी द वन योर बिजनेस सेटिस्फैक्शन. Yes, and I really believe in it. तो या कभी like ऐसा हुआ है that you were like the team is not getting along or इस तरह के issues, because बड़ी दफा. somehow ये बहुत ज्यादा होता है कि entrepreneur को बहुत patience वाला होना चाहिए, because एग्जैक्टली. मेरा भी होता sometimes I just lose it, I lose the temper. So does that happen with you? अच्छा रहीन, मेरा टेम्पर ना बहुत बहुत हाई था, स्टिल है. मैं अपने आई शाउट आउट टू माय सिबलिंग्स बट नेवर ऑन माय टीम. मेरी टीम अभी भी किसी से भी पूछ ले वो बहुत खुश है मेरे से. लेकिन जो एक कल्चर है ना, जो एनवायरनमेंट है ना, आपको अपनी टीम के साथ वो बरकरार रखना पड़ता है. बड़ी दफा ऐसा हुआ है कि डू यू इवन नो दैट जब मुझे एक डेवलपर हायर करना था ना, आई टुक मोर देन 50+ इंटरव्यूज, क्योंकि वो मुझे डेवलपर ऐसा नहीं चाहिए था जो कि 9 to 5 बैठ के जॉब करे और चला जाए, और उसको जो मैं कहूँ वो आए, उतना कोड करे और चला जाए. आई वांटेड अ पर्सन विद अ लॉन्ग विजन, जो कि एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट भी रखता हो, जो कि एक सेल्फ इनिशिएटिव लेता हो, जो कि he could do something for himself for that. Finally, due to some reference and after a long time, I got two of these developers जो कि they're doing tremendous job, और अभी भी they're still engaged with me. और अभी कल परसों मेरे और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, और ट्रेनिंग्स के अलावा उनको मैं इस कैस्केडियन के प्लेटफॉर्म पे लेकर आई हूँ. तो मुझे ना अब इस चीज में मजा आता है. पहले मुझे लगता था कि यार क्या बच्चों वाली बात करें, लेकिन ना अब मैं बड़े कामली पेशेंटली इनको, और जब मुझे गुस्सा आता है ना, व्हाट आई डू इज आई एब्जॉर्ब दैट. मैं गुस्सा समटाइम्स ना पी जाती हूँ. आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, पानी पीती हूँ, आई टेक अ फ्यू मिनट्स एंड देन आई गो बैक. हाँ, अब बोलो क्या था. और आई कम विद अ सॉल्यूशन. आई एम ऑलवेज द वन, हाय हाय ये हो गया, आई नेवर डू दैट. आई ऑलवेज कम विद अ सॉल्यूशन. अच्छा अब ये नहीं हो रहा ना, तो ये करके देखते हैं. Because I think being the leader, वो तो ये होता है ना कि like आप you're the leader, मतलब कुछ भी हो गया तो you're not gonna ask somebody हाँ. to, like Yeah. everybody asks you what to do. तो वो थोड़ा सा I mean कभी कभार there are always some problems. तो अभी हाउस कोरोना, बिकॉज कोरोना मेरा तो सबसे बड़ा मसला, मैं बेचारी घर पे, मुझे सिर्फ एक चीज की टेंशन होती है. The thing is ना कि because मेरे अब्बा फौजी हैं and we live in like that gated community. सही सही. And मेरा ये मसला होता है कि वैसे भी if I order something तो मुझे I need to go all the way to the gate and get it myself. और अभी तो ये they're not letting anything in, Yeah. because as soon as पाकिस्तान में पहला केस was confirmed, उन्होंने गेट सील कर दिए थे. They're like nobody coming in, nobody coming going out. God, such a strict तो law. मैं no packages, no nothing, मतलब मैं No तो food बिल्कुल deliveries, no food panda. no food delivery. फूड पैंडा की तो मुझे वैसे ही आदत नहीं है. आई प्रेफर Okay, ईटिंग एट होम. okay. लेकिन जो मेरा शॉपिंग स्प्री, बिकॉज ये टाइम तो होता है ना मेरे शॉपिंग स्प्री का, हाँ. और वो तो मामा अभी के साथ थोड़ा बैठ के वो सा करने ईज का. डाउन हुआ है आपका? लेकिन अभी ईज डाउन हुआ है कि अभी भी नहीं? अभी ईज डाउन बिल्कुल भी नहीं हुआ. You द should be ईजिंग having डाउन, drone deliveries then. डिलीवरीज Drone का तो आई deliveries आ वाज जाए. लाइक डिलीवरीज और तब होना जब मुझे कुछ ज्यादा मसला हो. और आई थिंक सफा, डोंट यू थिंक कि अभी जो हम ये टाइम है, वी रियलाइज कि हम बहुत सारी चीजें लोगों को दिखाने के लिए करते हैं.
अब मैं लोगों को दिखाना ना तो मैं आराम से नाइट सूट पहन के बैठी हुई हूँ. That's how I am. सही हो So गया, ठीक है. have you realized a lot of things that you do just because you know आपने कहीं बाहर जाना है लोगों को दिखाने के लिए, बहुत सारी चीजें जो हम भी कर रहे होते हैं. हाँ, अच्छा मेरी केस पे ना थोड़ा सा डिफरेंट है. मैं अपने कंफर्ट जोन से ना उस वक्त तक नहीं निकलती जब तक मुझे कोई मोटिवेट या उस तरफ लेकर ना जाए, या जब तक मेरा अपना कोई जाती काम ना हो. ऑब्वियसली अपने काम के लिए तो हम लोग हर हर वक्त तैयार होते हैं. फॉर माई ओन बिजनेस मुझे रात के 12 बजे कोई क्वेरी आ जाए, आई एम देयर टू रिजॉल्व. लेकिन जब दूसरे के लिए काम करना हो ना, मैं तब कंफर्ट जोन की बात कर रही हूँ. तो अब दिस बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, जब कि मैं नहीं हूँ, मैं अपने आप को, अपने साथ मैंने कभी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं लगाया, और पीपल थिंक एंड टेक मी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर. मैंने जस्ट बिकॉज आई स्पीक वेल डजंट मीन आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर. कम ऑन डूड, ये थोड़ी सी अपनी साइकी ठीक लेकर आओ. फिर लोग मुझे कहते हैं कि आप आके ना यूथ को गाइड करते हैं. भाई आई एम स्टिल अ यूथ माय ओन सेल्फ. मैं लोगों को आके यूथ को क्या नहीं, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, कम एंड यू शुड डूइंग दैट. मुझे लोगों ने इस तरफ पर आने के लिए इंसिस्ट किया. मुझे लोगों ने इतनी इतनी रिस्पेक्ट दी. मुझे लोगों ने इतना ज्यादा करेज दिया दैट whoever I am, whatever I do it for my people now. I have been getting a lot of topics on daily basis. I have been connecting to a lot of people on daily basis. तो ये लोग हैं जिनके लिए मैं काम करती हूँ. मैं अगर मैं मेरे घर पे, I told you before this live that I'm having a grand dawa today at my house, right? और सब नीचे मेरी पूरी फैमिली, there are like 18 to 20 people around. मैंने सारी पहले ग्रोसरीज की सुबह उठ के 12 बजने के बाद, सुबह 12 बजे नहीं होती वैसे, दोपहर होती है. ग्रोसरीज करने के बाद इट टुक मी क्वाइट लॉन्ग टाइम. देन आई प्रिपेयर्ड द इफ्तारी विद माय फैमिली, राइट? फिर वो इफ्तारी लगाना उठाना, इट्स अ होल प्रोसेस. और अभी चूंकि इफ्तारी के बाद चाय होती है घर पे, और चाय के बाद वो खाना लगता है. तो आई टोल्ड माय मम, इनका आई विल बी मिसिंग फॉर लाइक 30 minutes, यू हैव टू प्रिपेयर इट. मीनवाइल जस्ट आस्क अदर सिबलिंग्स कि आप खाना वगैरह रख दो, आई कम. अब देखो, अभी मेरा जज्बा है फॉर माई पीपल दैट आई एम लाइव हियर. वरना मेरी ईद के लिए मैं आ रही, मैं आपको कह सकती थी कि यार आज नहीं कल कर लेते हैं, आई कुड हैव सेड, राइट? लेकिन वो लोग हैं जो जो जिनके लिए मैं अभी यहाँ बैठी हुई, इन स्पाइट ऑफ माई फैमिली. ये एंटरप्रेन्योरशिप के सैक्रिफाइसेस होते हैं. और लोग कहते हैं भाई एंटरप्रेन्योर है, शशकों में जी रहे हैं, गाड़ियां रखी हैं, व्हाट्स सो नॉट पीपल से टॉक अबाउट सच एंटरप्रेन्योर्स, राइट? लेकिन ये सैक्रिफाइस है, ये कॉम्प्रोमाइज है, ये करना पड़ता है. एग्जैक्टली. तो कोरोना वायरस ने किस तरह लाइक आपके बिजनेस को कैसे किया है? लाइक सेल्स बढ़ी है या कम हुई है? बिकॉज मेरी तो ईद आराम से मेरे नाइट सूट में गुजरनी है, क्योंकि ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है. मैं तो पूरा टाइम जो है अवार्ड शोज और मूवीज देखते हुए गुजारूंगी. तो मेरी ईद का मजा है. अच्छा, कोरोना डिडंट अफेक्टेड माय बिजनेस दैट वे. इतना नहीं अफेक्ट किया, बल्कि बहुत पॉजिटिव में अफेक्ट किया, क्योंकि फाइनली आई वाज डूइंग फ्रीलांस जॉब्स. आई एम स्टिल डूइंग फ्रीलांस जॉब्स जस्ट टू फ्यूल अप माय ओन स्टार्टअप. लोगों को ये भी बड़ा होता है कि भाई स्टार्टअप शुरू करेंगे, हम एक आइडिया के साथ आएंगे, उसमें कुछ इनोवेशन डालेंगे और फिर इन्वेस्टर आ जाएगा. भाई इन्वेस्टर नहीं आ रहा. आपने अपने बिजनेस के लिए आपने बूटस्ट्रैप करना है. आपने कस्टमर से सेल्स लेकर आनी है. कस्टमर से सेल्स, और जब कस्टमर से पैसा आएगा आपने उसको दोबारा री इन्वेस्ट करना है. आपने फोन लेने नहीं जाना. ये लोगों पे वो बड़ा होता है, ठीक है? तो ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है दैट व्हेन मनी इज जंपिंग इनटू योर बिजनेस, व्हाट यू हैव टू डू अबाउट इट. अच्छा, तो अब मेरी टीम, चूंकि मैं इनको ऑलरेडी रिमोटली उन पर मैं उनके साथ काम कर रही थी, दे डू देयर जॉब, लेकिन रात को 9 बजे मेरी उनसे एक कॉल हो जाती है. विद इन वीक मेरे साथ उनके साथ कॉल हो जाती है. तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए और ब्रांड की वेबसाइट में जितने भी इश्यूज वगैरह, फाइनली आई गॉट टाइम फॉर इट, जो कि मुझे मेरी आम रूटीन में नहीं मिल रहा था. वो एक मैं तो द क्लॉक चलने वाली बंदी बन गई हुई थी. यूनिवर्सिटी, जॉब, फैमिली, स्लीप, स्लीप ईट रिपीट वाला हिसाब मेरा फिर ये वाला हाल हो क्या हुआ था. ये बल्कि स्लीप से भी पहले वर्क. तो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ना आई हैव केम अप विद माय ओन स्किल्स, क्योंकि मुझे ये ऑनलाइन आकर लोगों के साथ, इफ यू हैव बीन लुकिंग एट मी एज वेल, मैं भी लोगों के साथ बहुत आजकल इंटरव्यूज कर रही हूँ. लेकिन बिफोर कमिंग ऑनलाइन ना, दिस इज व्हाट आई लव. मैं पहले भी बहुत लोगों से बात करती थी, उनका माइंडसेट जानने के लिए, उनकी पॉजिटिव बातें जानने के लिए, टू कम अप विद न्यू अपॉर्चुनिटीज. तो जैसे मैंने बताया, आई एम अ पर्सन ऑफ कम्युनिकेशन.
तो अब चूंकि लॉकडाउन था तो आई स्टार्टेड टू हैव एंड इंटरेक्ट विद मोर एंड मोर टू द ऑनलाइन पीपल एज वेल। तो मेरे लिए सिर्फ जो मसला आया ना वो बिजनेस में नहीं आया, वो स्टडी में आया। मेरा 8 सेमेस्टर है इस सीएस डिग्री में एंड आई वांट दैट आई जस्ट मुझे कोई घर बैठे डिग्री दे दे उसको खाना उसको डिलीवरियां दे दे, मुझे डिग्री दे दे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा दफा लाइक मेरा भी ये होता है कि यार मतलब इस एज में मुझे एक तो ये भी वसा होता है ना कि स्कूल और ये सब कुछ मैनेज करना, बिकॉज स्कूल भी है, मेरा एंटरप्रेन्योरशिप है, मेरी कॉमेडी है, मेरी राइटिंग है, मेरी टीचिंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बहुत ज्यादा ही खैर दे, चीजें अल्लाह मैनेज करनी बहुत पड़ती जिंदगी है। दे। you're just a perfect sample for everyone that ये हमारी यूथ है, हमने ये यूथ को एम्पावर किया, ये हमारे आने वाले शाइनिंग बच्चे हैं जिनको दे आर परफेक्ट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एनीवेयर ऑल ओवर द ग्लोब। सो रहीन you must say you're doing a tremendous job, माशाल्लाह। अच्छा, tell me about your own business as well. What and किस तरह आप एंटरप्रेन्योरशिप में आई? अच्छा, so my entrepreneurial journey, of course, I promise कि मैं बताऊंगी। So मेरा ये था कि I was first a comedian. I was a comedian and a writer. तो उस वक्त I was doing my वो comedy शौक कहाँ focused से on पड़ा, my। वो आपको कहाँ से आया कि why should I do that? वो मुझे ये था कि मैं शुरू से ना कुछ बहुत ज्यादा the clown of the class kind of person थी, and I wanted to do something of my own because ड्रामेबाज तो मैं शुरू से थी। अब वो स्कूल के ड्रामास और इन सारे में तो मैं पहले से पार्ट लेती थी, बट आई वाज लाइक दिस इज अबाउट द प्ले, आई वांट समथिंग टू बी अबाउट माई सेल्फ। तो आई वाज लाइक स्टैंड, बिकॉज मेरे अब्बा मैंने हर चीज उनसे शेयर करती हूँ, सो वी वाज वर लाइक एक्चुअली दिस इज टू स्टैंड अप कॉमेडी, बिकॉज वो जोक्स हैं बट देर इवन वो वैसे उनको मैं वैसे भी नहीं बता सकती, आई नीड टू टेल इट थ्रू माई ओन स्टोरी। So it was all about myself and I started doing that. और मेरी जो स्टैंड अप कॉमेडी का प्रोफेशनल सफर था और मेरी एंटरप्रेन्योरियल सफर था, वो दोनों एक ही टाइम पर शुरू हुआ था। मजे की बात। वाओ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आई वाज अ कॉमेडियन, आई वाज अ राइटर, बिकॉज राइटर इस तरह से कि मैं स्टोरीज भी लिखती थी एंड मैं अपनी कॉमेडी भी लिखती थी, एंड आई वाज लाइक यार ठीक है, I mean, everything was going cool, focused on my comedy. और उधर से I met a few people और उधर से जो है मजे की बात, I got to do one of my own like very own private shows kind of thing. And that was at the National Incubation Center, Islamabad. Okay. तो अब उधर मेरी ओपनिंग परफॉर्मेंस थी, मेरे सामने सारे एनआईसी के बड़े बैठे हुए थे, like the project director and everybody, and I was like, cool, let's nail it. So and I realized कि यार I have so many ideas that could be turned into sustainable businesses, and I have potential. Why not if I have this moment? Because I don't think so, and a laughing crowd, like the happiest leader of that comedy group ever, and the best moments ever. I think this is the time. So I said through my jokes कि भाई मेरे अब्बा जो है मुझे ससुराल में डालने का सोचोगे, मुझे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में बिल्कुल नहीं डालेंगे। मेरी अम्मा पिच कराना मेरी अम्मा पिच करना नहीं सिखा रही होंगी, ससुराल की नहीं, ससुराल की पिच पे गूगली मारना सिखा रही होंगी। तो दे एग्रीड, दे वर लाइक ठीक है, बिकॉज उसमें 6 कोहॉर्ट की एप्लीकेशंस खुलने वाली थी, एंड द नेक्स्ट 10 days आई वाज इन शार्क टैंक, मतलब लिटरल मैं बिंज वॉचिंग करती थी शार्क टैंक, ऐसे लगता था जैसे मैंने क्लास में डाल के उसको पी लिया है, इतना ज्यादा शार्क टैंक इज ऑलवेज some मजे की सीरीज है वो देखने वाली। बिल्कुल, pitches and everything. So I was very much into this startup thing. मैं तो बस नहीं चल रहा था कि मैं अपने अब्बा के HP वाले लैपटॉप के पीछे वो एप्पल काट के लगा दूं ताकि एप्पल लगे, more the startup ecosystem like। सच के या बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में अब जो पहचान है वो यही है ना, पीछे एप्पल होना चाहिए, एप्पल वॉच, सूट और बैठा हुआ, दिस इज हाउ entrepreneurial। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, और हमें एंटरप्रेन्योर्स को ना ये उस माइंडसेट से निकलना थोड़ा सा चाहिए कि यार पहले मेहनत आती है, फिर पैसे आते हैं, फिर रिटर्न बैक टू द सोसाइटी आते हैं। सो यू हैव टू, वो पहले मेहनत के फेज में तो आओ, फिर एप्पल भी और ब्लूबेरी भी और फिर सारी एप्पल्स ले आना फॉर योर ओन सेल्फ, सारे फ्रूट्स ले आना। लेकिन लोग मेहनत करते करते ही थक जाते हैं,
उन्हें लगता है कि यार बहुत कर ली, 6 महीने कर ली इंक्यूबेशन में, बहुत कर ली, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल एंड देन आई गॉट इनटू द व्हाट लेकिन अभी जो मेरा आइडिया है दैट आई एम रियली वर्किंग ऑन अभी तक तो लॉन्च भी हो चुका होता लेकिन यू नो कोरोना कोरोना परफेक्ट टाइमिंग कोरोना so हैपेंड। yeah so मेरा ये it's all about cotton bags as a substitute of polythene bags with the few twists like and of course they're to be revealed after its launch. Yeah, inshallah, So now inshallah. because we're coming to an end of our broadcast and it was really nice talking to you. एक Zabardast. interview से Same, ज़्यादा एक likewise. chat हो गया था. Likewise, likewise. It was really interesting and thank you so much to the audience. अब आज जो है इस सेशन में तो मेरी बहुत ज्यादा डिफरेंट ऑडियंस रही है. पहले सेशन में तो बहुत ऊपर रही थी. इस सेशन में ये है कि मेरी एट अ टाइम मेरी 7 भी ऑडियंस हो गई थी और 147 ऑडियंस भी हो गई थी. तो इतने ज्यादा लाइक 140 people joining and then coming back and then you know all those things happen. So it's really really interesting. Thank you so much for watching and inshallah we will come again with another personality. Inshallah. All the best, Raheen. All the best for your Thank you all so much. upcoming events and all the best for your every जिस काम में भी कदम रखो ना, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत 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 कामयाबी दे. आमीन. Thank you so much and goodbye. Allah Hafiz. Goodbye.